conducted for joining us for this final winding up session. And at this time, I wanted to upgrade you, ma'am, just like update you that we had completely 45 participants. We have invited 4 participants from each state out of 10 states. Uttarakhand had only 3 participants, and also Bihar, we have got double the time deputation, so we have got 8 participants. So totally, otherwise all had four participants, and Rajasthan had 5 participants. So we had 45 participants, including 2 of our RIE faculty also. And as per the schedule, we were able to complete, go ahead with all the sessions till now. So there is only one more technical session left out, which is more on the physical consideration by Dr. Ethan from AIMS. That's one session in the afternoon is still there. Otherwise, all the technical sessions we were able to complete, and they were given few assignments. And the people have been very actively participating in the complete program. They have paid very good attention, and they were very much like they were all on time to be with us, and they have cooperated with us so that this program can go ahead in as per the plan. And most of them have submitted the assignments, but there are few people who need more support, so we'll be giving some extension of time for them, and then we will be expecting them to complete everything by tomorrow or maximum Monday. So that's a kind of activity that has gone. As part of this, we thought we should give a little flavor of development. So they have also developed in groups and animation using stop motion animation. And within all the trainings we have heard till now, this group was given only 1 hour. Usually we give 1.5 hours, but they were given 1 hour time only. But within 1 hour time, this group has completed the task exactly within 1 hour in a very nice way. They have done a very beautiful animation. They have also got it created, and more than that, as a peer, also they were supporting each other and learning from each other. So overall, the program was going in the planned manner because of the participation of the participants. So they were active, they were interactive, they were engaging. That is why we could achieve what we have planned. So it's a well mood program as for our observations as per the program's thing. So we have also prepared a newsletter as part of this. Like we were trying to make a newsletter, and since we had thought of having it in the evening, we couldn't get the newsletter printed yet. Printer couldn't deliver it yet, but we will be just completing it by evening, so that every group was allotted to prepare one session of the newsletter. It's good, come. So this is the newsletter, man. So we just took it Xerox for color Xerox as of now to show it so that we can. Participants have created. Yes. Though we didn't give any separate time for them, they have just done it in their own time only, sacrificing their evenings and nights, and they have come out with this. So everyone was meeting all the timeline to give, so that is why things are in place. So I take this time to thank all the participants who have contributed in doing this newsletter. So this today's program, it was like today's program, we didn't give time for 2 groups to complete it. So we are giving a 1 day extension of time so that today whoever has been allotted the work, they will complete the newsletter, and once we compile that also, we will send it to everybody. So this is an output to show what works they have done and how the program has gone. And with this brief, I request ma'am to address all the participants. Thank you, Dr. Angel, and thank you very much for appraising me. So I have already interacted with them on day one, and also I had a comprehensive session with them. So I could assess that these participants are active because in my session also you raised some of the very valid queries, which shows your keen interest in the topic and your inquisitiveness also to understand about the development of audio video resources and the nuances of the development of audio video resources. So I could see that participation was active. Success of any program
is not entirely depend upon how we have uh, crafted the program, how we have developed the program schedule and the session planning. It largely depend upon the participants, how you take the learning which is happening during the sessions, whether you are raising questions, whether you are participating in hands-on activities. But as Dr. Angel has already mentioned that you could develop the stop motion animations also within a period of 1 hour. So the purpose is just to give an exposure. We are repeatedly mentioning this, that this these kind of program are to give you an orientation and exposure. Learning happens when you indulge with the learning. So learning is a continuous process. So 5 days में, 3 days में या 10 दिन, महीना में भी लर्निंग नहीं होती है. आप लोगों ने जो पढ़ाई भी की है, आप लोगों ने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड एमएड किया होगा, उस 1 साल में भी आपकी लर्निंग हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट है. जब आप फील्ड में जाते हैं, व्हेन यू बिकम टीचर एजुकेटर, एक्चुअल लर्निंग तभी होती है जब हम अपने रोल को एज टीचर एजुकेटर निभाते हैं और बच्चों के साथ इंडल्ज होते हैं. तब उस प्रोसेस में लर्निंग हमारी कंसोलिडेट होती है. जब कोर्सेज होते हैं उस दौरान तो केवल हमारा बेस फॉर्म होता है. तो इस थॉट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं, सीख रहे हैं या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो कि यहाँ हमें ग्लिम्सेस मिलेंगे कि क्या क्या है, क्या नई चीजें हैं. पर उन नई चीजों को जब तक आप फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे. जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, व्हेन वी वर डूइंग आवर ओन एजुकेशन, आवर ओन कोर्सेज, उसमें भी एग्जाम के लिए तो हमें सेल्फ स्टडी करना ही पड़ता था. क्लास में क्या पढ़ाया गया है उसको कंसोलिडेट करने के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ता था और एग्जाम उसी से पास होता है. टीचर ने जो बताया वो एग्जाम्पल्स हमें रिकॉल हो जाते हैं जब हम पढ़ते हैं. तो ऐसा नहीं कि वो कुछ रोल नहीं होता है. रोल उतना ही होता है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर देना और सीखने के लिए आप लोगों को प्रेरित करना या हमें अपने आप को प्रेरित करना, ये उद्देश्य होता है. तो उस पर्पज से, उस लाइट में अगर हम रिफ्लेक्ट करें इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि वी कुड achieve all the objectives, we could achieve the way we have planned this program for you. और आगे जाके, क्योंकि ये KRPs होंगे ना डॉक्टर एंजल, मास्टर ट्रेनर्स होंगे, तो आप मास्टर ट्रेनर्स हैं तो आपको तो लर्न करना ही है, बिकॉज यू नीड टू मेक अदर्स लर्न ऑन व्हाट यू हैव लर्न. लेकिन यहाँ जो आज लास्ट डे है हमारा, लेकिन हम इसको लास्ट डे इन टर्म्स ऑफ द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम कह सकते हैं. लेकिन यहाँ से हम ये मान के चले कि अब शुरुआत है, ये एंड नहीं है बल्कि शुरुआत है. यहाँ से आप शुरुआत करेंगे औरों को तक भी जो कुछ आपने सीखा उस लर्निंग को पहुंचाने का, एक तो. और इस प्रोसेस में कहीं भी आपको CIET से किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, रिसोर्स सपोर्ट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं. वी विल प्रोवाइड दैट सपोर्ट ऑल्सो जब आप कर रहे हो. क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं कि बच्चे लर्निंग आउटकम्स किस तरीके से अचीव कर पाते हैं, उनका प्रोग्रेशन क्या है, यही क्वालिटी का मेन इंडिकेटर है हमारे लिए. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये मानना है कि हम एक लार्जर गोल, जो कि एक देश के लिए है, देश के बच्चों के लिए है, उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं NEP 2020 के हिसाब से. और इन सब को ध्यान में रखते हुए अभी हमें आगे नई शुरुआत करनी है और इस शुरुआत में भी हम आपके साथ हैं. तो इस प्रॉमिस के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ. हम लोग ऑलरेडी काफी बातें आपसे हो चुकी हैं, आप लोगों के बारे में
पता भी चल गया है हाउ कीन लर्नर्स यू आर, और क्वेश्चंस के भी रिस्पांस, जो मेरे भी क्वेश्चंस थे उसके रिस्पांस भी आप लोगों की तरफ से काफी अच्छे आए, जिसका ये पता चलता है कि यू आर अलर्ट लर्नर्स, और आप ऐसे ही बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। I would request any two participants to share your reflection or feedback based on the program. You can come in the front. One male and one female. We request you to come forward. Respected Dana sir, respected Indu ma'am, एंजल मैम और मेरे साथी सबको नमस्कार। यहाँ पर एससीईआरटी की तरफ से मुझे बुलावा गया, मैं डाइट से हूँ और आने का मौका मिला, तो फर्स्ट थैंक्स तो मेरे एससीईआरटी को जिन्होंने चुना, और यहाँ आकर के साथियों के साथ भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ सीखने आईसीटी में एक ये सोच करके आए थे कि हम जितना जानते हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल हुआ। दीक्षा हम लोग यूज करते थे, लेकिन और किस तरह बेहतर यूज कर सकते हैं ये जाना, और एलएमएस को बहुत बेहतरीन ढंग से सीख पाए। इसमें पहली बार हमने काम किया। साइबर सेफ्टी ये शब्द सुना था, थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन यहाँ जिस तरह से सीखा, शायद हम जा करके आगे अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे। एनईपी एनसीएफ इन सबको भी बारीकी से, भले उसके सेशन कम थे लेकिन हम उसमें बारीकी से उसको किस तरह देखना है, समझना है, ये सब चीजें सीख पाए। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि हम दौड़ते भागते असाइनमेंट पूरा कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत मजा आ रहा था। और जैसे कल भी हम लोगों ने किया, सबने मिल करके एक एक एनिमेशन बनाया, तो इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आया, हमारी लर्निंग भी बहुत अच्छी रही। और डेफिनेटली ये 5 दिन बहुत ज्यादा सीखने वाले थे। यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला और वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम सब सबसे इंटरेक्ट नहीं भी कर पाए, तो भी जिनसे भी बात हुई उनसे भी बहुत कुछ उनके फील्ड का जानने को मिला। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छे लर्निंग का सेशन था। थैंक यू मेरी एससीईआरटी को, एनसीईआरटी को, पूरे स्टाफ, यहाँ की टीम को थैंक यू। Can I request one male Sir, person? Sarguja. Thank you. Anyone can. You can introduce yourself so that Yes. we know. आदरणीय सर, मैम, कोऑर्डिनेटर मैम, जो CIT NCERT टीम और सभी साथीगण, आप सबको जोहार। मैं तैयब अंसारी, डाइट फैकल्टी, डाइट पबिया, जामताड़ा, झारखंड से हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे CIT NCERT आने का मौका मिला। एज पर एक्सपेक्टेशन, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज्यादा कुछ मिला यहाँ पे। इन 5 दिनों में जितना हम लोगों ने, मैंने जितना यहाँ पे मुझे मिला, जितना सीखने को कम शब्दों में बयान कर पाना काफी कठिन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ जब आए, जो मेरा उद्देश्य था टेक्नोलॉजी के बारे में, जितना चीज मैं जानता था उससे एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट मिला कि किस तरह इसको हम लोग एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। हालांकि पहले से जान रहे थे, लेकिन इसके यूज करने की किस तरह से यूज है, कहाँ क्या लिमिटेशन है, किन किन छोटी छोटी बातों को कहाँ ध्यान रखनी है, जो अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं, वो सारी चीजों को इतनी अच्छी तरह से यहाँ सीखने को मिला कि कभी ना भूलेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें और भी, जैसे NEP 2020 जब से लॉन्च हुई है, कई बार उसको पढ़े, लेकिन देखने की नजरिया जो होती है ना, यहाँ पे जितने की रिसोर्स पर्सन आए, उनसे जब इंटरेक्शन करने की मौका मिला, तो ये बहुत ही वंडरफुल समय और मोमेंट टाइम रहा। क्योंकि एक चीज होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार देखने का जो रिसोर्स पर्सन का जो नजरिया था, उस अनुसार से जब हम यहाँ क्लास में बैठ के देख रहे थे, सोच रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो उसका वैल्यू नहीं कर सकते, इतना ज्यादा था, अमूल्य हम कह सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मिला। दूसरी बात, यहाँ जो कैंपस विजिट किए हैं, जिसमें हम लोग साइन लैंग्वेज में गए और ऑगमेंटेड रियलिटी VR इन सब में गए,
देन विद्या समीक्षा केंद्र गए। ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ जानने को मिला। इन संक्षेप में हम यही कहेंगे कि यहाँ आके हमारे माइंड को स्पार्क मिला है और ये सारे चीज जाके हम अपने डाइट एंड एनसीईआरटी में एससीईआरटी में हम इसको लागू करेंगे। और अगर कहीं हमको और भी सपोर्ट चाहिए तो हम इसकी उम्मीद भी यहाँ से करते हैं सीआईटी और एनसीईआरटी टीम से। इसी के साथ में फिर से एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ। आभार, जोहार। Thank you so much for your reflections. And every day we have also asked for the reflections, sir, and they have come. And on a daily basis, they have also made us a newsletter. Since suddenly the validity was advanced for that time, we couldn't get the proper printout, but at least we thought we should release it as a newsletter. We have just taken one copy from internal. So we would request both of you to Release it. hold it so that we release it officially. शिवानी कितने देर तक आप पकड़ ये पार्टिसिपेंट्स नहीं बनाए। Pura. Congratulations. So now I take this time to invite Professor Bairaji to address all the participants. Namaskar सभी को, very good afternoon. My esteemed colleagues from CIT, Professor Indu Kumar, who heads the Department of ICT and Training in CIT, and my esteemed colleague Dr. Angel Ratnabhai, Associate Professor and the coordinator of this 5 days workshop on leveraging technology for using it in teaching, learning and assessment process for the master trainers, key resource persons from different states, UTs. I think nearly 10 states are there, and including our NCRT constituents, we have our colleagues from RIs also. So first of all, a huge congratulations to all of you for graduating in these 5 days master trainers training program. I must say graduating because you are nearly going closer to successfully complete this 5 days program. And we have a hidden agenda also. You will be our spokespersons, master trainers, spreading across the country, spreading the fragrance of technology, how to integrate it for different purposes. And all of us, we know that we have a policy goal, and the policy goal is to provide equitable quality education and lifelong learning for all, rooted in Indian culture and ethos, and which is also accountable, affordable also. The education, it is also echoing the sustainable development goal 4, which also talks about uh, equitable quality education and lifelong learning to be achieved by 2030. But our policy also mandates some of the things, particularly the foundational literacy and numeracy, to be achieved by 27. 26, 27. Yeah, so that is also our mandate. And all of us, we know समता, समानता और गुणवत्ता, तो इन तीनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे तो तभी इतने बड़ी रोबस्ट सिस्टम जो है हमारे इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। तो नियरली 15 लाख स्कूल है और नियरली 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर है। 1.1 करोड़ 01 करोड़ टीचर्स है, वो खाली स्कूल में है। हायर एजुकेशन में भी 16 लाख टीचर है, तो उनको भी जोड़ेंगे तो 1 करोड़ 16 लाख टीचर होंगे। और स्टूडेंट जो है पूरे कंट्री में 30 करोड़ है, 25 करोड़ सिर्फ विद्यालय में है। तो हमारे जो नियरली 15 लाख स्कूल है, आपने विद्या समीक्षा केंद्र गए होंगे तो पूरी आंकड़ा वो दिखा रहे होंगे। तो लक्षद्वीप अगर 32 स्कूल है तो यूपी अमेरिका के बराबर है पॉपुलेशन में। तो और जो है हमारे इतने बड़े बड़े राज्य हैं, वो एक एक कंट्री अपने आप में है। तो ग्लोबली हम कंपेयर नहीं करें, इंडिया अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड है।
तो 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर से जो आए हैं तो उनके वहाँ ग्लेशियर में जो है तो आप जम जाएंगे तो राजस्थान में चूरू में जाएंगे तो 50 डिग्री मिलेगी आपको समर में। तो अभी भी साउथ में 35 डिग्री 30 डिग्री भी टेम्परेचर मिलेगी तो राज्यों में। तो तभी हाफ साट में यहाँ है तो क्योंकि बिकॉज दे डोंट सी दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर, दे आर गोइंग बैक in their respective states in Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, even Puducherry, Tamil Nadu, even Andaman Nicobar Island। मैडम अभी कालापानी से होके आई है तो so you find a large variation and all of us we know the policy also mandates कि करिकुलम हम ऐसे बनाएं जो कि होलिस्टिक हो, इंटीग्रेटेड हो, एंगेजिंग हो, जॉयफुल हो। होलिस्टिक हो, इंटीग्रेटेड हो, एंगेजिंग हो, जॉयफुल हो। और करिकुलम नो हर्ड सेपरेशन की बात करती है। तो टेक्नोलॉजी बहुत हद तक हमें मदद कर सकता है, कंटेंट, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों का अगर सम्मिश्रण हो, इंटीग्रेशन हो, समेकित रूप से हम इस्तेमाल करें, सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो एज टीचर्स। सो अभी एआई जो है आ गया है बड़े पैमाने पे, आप जानकर भी जी चुरा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके बच्चे वो यूज कर रहे हैं। तो दे आर टेक्नोलॉजी नेटिव्स, हम लोग फॉरेनर्स हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स हैं। तो सो वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अब कोई भी चीज यूज करेंगे उसका अच्छा ही बुरा ही है, तो लेकिन ऐसा यूज करें कि तो उसका जो है रिजल्ट अच्छा है सिस्टम के ऊपर। और टेक्नोलॉजी यूज के बारे में अगर बात करें, आपको ऑलरेडी डिजिटल इनिशिएटिव और पॉलिसी पे डिस्कशन ऑलरेडी किया होगा। 5 ऐसे मुद्दा है, आप में से कोई है जो हिंदी नहीं समझते हैं? You also kuncham kuncham swalpam swalpam or okay. Actually there are 5 thrust areas the policy says we being teachers and teacher educators needs to use technology। सबसे पहला जो है पॉलिसी सेज दैट द फर्स्ट थर्स्ट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सेशन में आपको ये कवर किया होगा लेकिन मैं आपको दोहरा रहा हूँ। तो so that you becoming our ambassadors you should know that these are the 5 areas we need to use technology। तो सबसे पहला एरिया है जो थर्स्ट है पॉलिसी का, टू यूज कटिंग एज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। तो इन तीनों में जो है बड़े पैमाने पे हमारे पास दीक्षा है, निष्ठा है और भी रिसोर्सेस हैं। तो जादुई पिटारा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ई पाठशाला है और बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी मोबाइल ऐप भी है और पोर्टल भी है। तो हम उसको कैसे पठन पाठन मूल्यांकन प्रक्रिया में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो वर्चुअल लैब होना क्यों, क्योंकि अपने क्लासरूम में तो मेंढक का चीरफाड़ बैन है। मेंढक मीन्स फ्रॉग, so dissection of frog is banned in our classroom environmentally। तो बच्चों को जब तक ये मुर्दा मेंढक मिले चीरफाड़ के लिए, सिमुलेशन से तो कम से कम काम चला ले। मैडम तो काला पानी घूम के आ गई, सेलुलर जेल भी देख के आ गई, लाइव वोल्केनो भी देख के आ गई। तो हम बर्ड वोल्केनो उसको कहते हैं। तो लेकिन आप में से कोई काला पानी गया है? नहीं गए। तो अगर मैडम या वो काला पानी में रहने वाले, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहने वाले, तो इफ दे प्रिपेयर ए वर्चुअल टूर ऑफ सेलुलर जेल, so we can see and recreate history in our classrooms by watching that video, showing it to children that how during freedom struggle, so our freedom fighters, they were imprisoned, tortured and killed there also by Britishers। तो सिमिलरली अगर ज्योग्राफी क्लास में हम वोल्केनो की बात करेंगे, लाइव वोल्केनो की बात करेंगे, आई कैन नॉट टेक एनी चाइल्ड टू volcanic eruption site, they will be melted into water droplets because it will be so heat generated at the site, so no human habitation is possible there near that volcanic eruption site। तो अगर उसका कोई वर्चुअल रियलिटी है या कुछ ऐसे विधा हैं जिससे हम क्लासरूम में रिक्रिएट कर सकते हैं,
तो उससे बच्चे सीख भी सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक्स की बात जब करते हैं, ज्योग्राफी के कोई हैं आप में से? हाँ जी। तो जब बात करते हैं अब वॉल्केनिक एरप्शन में, या जब प्लेट इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट होते हैं, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू शो देम। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में टू टीचर्स कैन स्टैंड ऑन टू प्लेट्स एंड शो दैट हाउ द प्लेट्स इंटीग्रेट एंड डिसइंटीग्रेट। तो और उनको सिखाएं कि ऐसे कैसे ये संभव है। सिमिलरली अगर जियोजेब्रा एप्लेट्स हैं तो मैथमेटिक्स सिखाना और आसान है। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स आर 180 डिग्री सिखाना और आसान है। तो सिमिलरली अगर फेट सिमुलेशन यूज करते हैं, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो साइंस के हैं, तो उसको कॉन्क्रेटाइज मैनर में नहीं ठीक है ना, not ठीक। तो वो जो है बहुत आसान तरीके से और कॉन्क्रेटाइज मैनर में उसको सिखा सकते हैं, जो कि नॉर्मली क्लासरूम में इम्पॉसिबल है। अब स्पेस में कैसे रहते हैं, तो जब तक हम ना रहें या सिमुलेटर ऐसे सिमुलेटेड कंडीशन में ना रहें, वो जानना बहुत मुश्किल है। या एक वर्चुअल रियलिटी, हमारे जो लैब में आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर में गए थे तो वहाँ ये थे। अब फोटोसिंथेसिस समझाना बहुत मुश्किल है, और वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में। कैसे फूड, हम तो अपने किचन में खाना बनाते ही हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपने लिए भी खाना बनाते हैं। तो पत्तों के अंदर, पेड़ जड़ के अंदर, तने के अंदर, सो स्टेम के अंदर, तो घुस के भी बच्चे देख सकते हैं कि हो क्या रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है। तो सिर्फ सिमुलेशन में पॉसिबल है, हकीकत में नहीं ले जा सकते हैं। उनके पत्तों के अंदर कोई घुस सकता है? तो हाँ जी। सो देयरफॉर ओनली टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस इन डूइंग दैट। और असेसमेंट में सैकड़ों टूल है, चाहे वो मेंटीमीटर हो, काहुत हो, हॉट पोटैटो हो, खाने वाला नहीं, टेक्नोलॉजी वाला, या महारा हो या और कोई हो, तो जिससे कि असेसमेंट जो है हम लोग बच्चों का कर पाए और टाइम बाउंडली कर पाए, और ताकि हम उसका लेखा जोखा रखें और बच्चों में क्या कमी है तो उसको पूरा करें हम। तो तभी पहला थर्स्ट जो है पॉलिसी का, क्योंकि इतने बड़े तादाद है हमारे कंट्री में शिक्षा व्यवस्था, हम चाइना से बड़ा सिस्टम है। चाइना में 6 लाख स्कूल है, तो आपके 15 लाख स्कूल है, तो 14,72,000 स्कूल है। तो इसीलिए अगर इतना बड़ा सिस्टम है तो हम सब जगह हर चीज लाए, वो संभव नहीं है। तो टेक्नोलॉजी कुछ भी थोड़ा मदद हमें कर पाएगा। सेकंड जो मुद्दा है वो पॉलिसी कहता है, दूसरा थ्रस्ट है टू ओवरकम द बैरियर ऑफ लैंग्वेजेस। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं पता है? हाँ जी, 1300 से ज्यादा भाषाएं हैं। तो हमारे देश में, मेरी मातृभाषा उड़िया है, पूर्ण बाबू का भी मातृभाषा उड़िया है, तो लेकिन आप लोगों का सबका अलग अलग है। हम मैं उड़िया में शुरू कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो लेकिन पॉलिसी का ये कहना है कि लेबल बेस्ड नर्सरी टू टर्सरी, नर्सरी टू पीएचडी, पोस्ट डॉक, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में हो। क्योंकि जितने रिसर्चेस हैं, साइंस है, वो यही सिद्ध करता है कि बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में सीख रहा है तो 5 तक अगर भी सीख लिया अपनी मातृभाषा में, कक्षा 5 तक, सो नो बडी कैन स्टॉप दैट चाइल्ड फॉर लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। क्योंकि उसी मदर टंग लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल को यूज करके सैकड़ों भाषा सीख सकते हैं। जैसे झारखंड से जो आए थे उन्होंने जुहार बोला, तो हम नमस्कार बोलते हैं, कोई सत श्री अकाल बोलेंगे, कोई खुरुमजारी बोलेंगे। तो और जो है अलग अलग तरीका है ग्रीट करना है, कोई प्रणाम बोलेंगे। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज बोलते हैं। तो हम अगर एक भाषा में बच्चों को सभी को सिखाएंगे, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल है, फुल ब्लोन स्किल है, जो 4 कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो अपनी भाषा में हुआ है। तो हम एक विदेशी भाषा जब लाके सिखाएंगे और जबरदस्ती सिखाएंगे तो गलतियां करेंगे और उसको नेचुरली नहीं सीख पाएंगे। जैसे हमने उड़िया सीखा है अपने आसपास में रहकर, परिवार से, पड़ोस से, और अपने गांव से, गांव के आसपास से, तो जो सीखा है तो वो इतना आसान नहीं है। और हजारों शब्द और वाक्य हम कक्षा में लेके आते हैं।
तो उससे आगे जोड़ेंगे तो आसान होगा। हम कोई और नए भाषा ले आएंगे, उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जुड़ेंगे नहीं। तो therefore the policy is saying, और एनसीईआरटी ने पहली बार इतिहास में for the first time we have developed the textbooks into 23 Indian languages, 23 languages including English। तो 22 भारतीय भाषा है प्लस अंग्रेजी, जो कि हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सह राजभाषा है हमारे देश का। तो इसीलिए जो है 22 भारतीय भाषाओं में हमने पहली बार एनसीईआरटी 61 में 1 सितंबर एनसीईआरटी का हैप्पी बर्थडे है। तो हम लोग तब से 4 भाषा में लगभग बनाते थे, लेकिन हकीकत में 3 भाषा में बनाते थे, क्योंकि संस्कृत में हमने कभी साइंस का किताब नहीं बनाई है, ना इंग्लिश के वो मैथमेटिक्स का किताब बनाया है। लेकिन पहली बार हमने, चाहे वो मैथिली हो, चाहे संथाली हो, चाहे डोगरी हो, चाहे पंजाबी हो, उड़िया हो या बोडो हो, तो इन सब भाषाओं में जो है टेक्स्ट बुक बनाया है, और वो एआई को लगा के बनाया है। एआई ने पहले दे दिया और उसके बाद हमने इंसानों से उसको वेटिंग किया। तो वेटिंग इसीलिए किया क्योंकि मशीन जो है कई बार गड़बड़ कर भी देता है, क्योंकि उनको सारी चीज पता नहीं है। मैं कहूँगा एजुकेशनल इंटरवेंशन ट्रांसलेट करो, वो करेगा शैक्षिक हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप नहीं है वो। तो और उसको क्या करना चाहिए, तो इसीलिए पॉलिसी का ये कहना है कि हमें टेक्नोलॉजी यूज करके भारतीय भाषा में कंटेंट बनाए और बच्चों को दें। अदरवाइज मैडम जहाँ गई थी अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमानीज एक लैंग्वेज फैमिली है, वो खत्म होने के कतार में है। यूनेस्को ने उसको एंडेंजर्ड लैंग्वेज लिस्ट में लाया है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे होते हैं एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, तो ऐसे भाषाएं भी एंडेंजर्ड होंगे। तो क्योंकि वो मिलेंगे नहीं, बोलने वाले नहीं होंगे तो मिलेंगे कहाँ। तो वो भी कुछ लोग जिंदा है, तो उनके साथ साथ वो भाषा खत्म होगी। तो इसलिए भाषाओं को प्रिजर्व करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कल्चर है वो इनडायरेक्टली, हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है वो भाषा से समृद्ध होता है और भाषा से बढ़ता है। तो इसलिए भारतीय भाषा में कंटेंट बनाना और बच्चों की भाषा में बनाना, तकनीकी का इस्तेमाल करके, भाषिणी अनुवादिनी हम लोगों ने यूज किया है। तो और सिमिलरली राज्यों को भी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके वो करना है। तीसरा जो थर्स्ट है वो टीचर प्रिपरेशन और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। हमारे लगभग 17,000 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और लगभग 14 से 15 लाख टीचर हम सालाना बनाते हैं। डाइट, एसीईआरटी, बीएड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब मिलके। सो वी प्रिपेयर नियरली 14 to 15 लाख टीचर्स पर एनम। लेकिन डू यू नो हाउ मच डिमांड वी हैव पर एनम? सिर्फ 6 लाख है। तो इसलिए हम कुछ अनएम्प्लॉयड भी क्रिएट कर रहे हैं हमारे सिस्टम में। सो डिमांड सप्लाई में तालमेल नहीं है। देयरफॉर वी टुक यू टू विद्या समीक्षा केंद्र। यू नीड टू एनालाइज एजुकेशन डाटा। व्हाट इज द डिमांड ऑफ टीचर्स, हाउ मच सप्लाई यू शुड हैव, और वी ऑल शुड हैव। नॉट दैट वी हमारे आरआई कुछ भी टीचर एजुकेटर बना दे या डाइट्स कुछ भी बना दे, लेकिन वो खपेंगे नहीं कहीं सिस्टम में, क्योंकि पोस्ट नहीं है। सो देयरफॉर वी नीड टू, और अगर बना रहे हैं, क्या हम गल्फ कंट्री के लिए, खाड़ी के देश के लिए बना रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री में के लिए बना रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए बना रहे हैं? बना भी सकते हैं। उनके एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, अमेरिका में, जापान में, थाईलैंड में, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी यूरोपियन कंट्री में एजिंग पॉपुलेशन। हमारे इंडिया में 2/3 हमारे पॉपुलेशन यूथ है, तो अगले 50 साल पूरे विश्व में छाएंगे वो। तो उनकी स्किलिंग अच्छे से हम करेंगे तो पूरे विश्व में और डंका बजाएंगे इंडिया का। तो इसीलिए कि हम टीचर प्रिपरेशन ऐसे करें प्री सर्विस लेवल पे, और इन सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे कराएं, तो ताकि जो 50 घंटे की ट्रेनिंग इन सर्विस में करानी है, तो उनके हथेली पे कोर्स तो हो। अब वो बोलेंगे प्रोफेसर इंदु जी, डॉक्टर एंजल कोर्स तो दे दीजिए 50 घंटे के हमारे टीचर का कराने के लिए। उन्होंने दे दिया है दीक्षा पे, 100 से ज्यादा कोर्स है, और कई 11 राज्यों ने भी कोर्स अपना भी ले आए हैं। निष्ठा के अलावा भी कोर्सेज ले आए हैं, और कोर्सेज निष्ठा का आ रहे हैं। हो सकता है प्रोफेसर रंजना जी ने और प्रोफेसर सरस सिन्हा जी ने आपसे बात किए होंगे। डिड दे कम? या सो उन्होंने बात किया होगा, और कोर्सेज भी ला रहे हैं। तो इसलिए तकनीकी को यूज करके हम टीचर प्रिपेयर करें। अदरवाइज 1 करोड़ टीचर को ट्रेनिंग देना, 1 साल में वो कवर करना, अपने आप में टेढ़ी खीर है। तो इसीलिए विदाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्केलिंग पॉसिबल इम्पॉसिबल है।
तो इसलिए टेक्नोलॉजी यूज करके हमने मास्टर ट्रेनर तो बना लिया, और हम साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4% टीचर ट्रेनिंग फेस टू फेस में कर दिया, लेकिन बाकी क्या करें, 1 करोड़ टीचर कहाँ गए? So we need to train them, and since we represent diets and SERTs, so all SERTs and diets, they have responsibility to 100% train 50 hours training for every teacher. तो क्या आपने दिया है उनके लिए ट्रेनिंग कोर्स? क्या डाइट ने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई कस्टमाइज, उनको एक्शन रिसर्च का अलग ट्रेनिंग चाहिए, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया, छोड़ दिया, बोले कि ये 10 घंटे के कोर्स करो और एक्शन रिसर्च पे मास्टरी कराओ अपनी? तो इसीलिए वी नीड टू ब्रिंग मोर एंड साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो ए कंसर्न एरिया. AI is also a concern area. All teachers needs to know to use AI for holistically addressing a concept और इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाने के लिए, नहीं तो इम्पॉसिबल है. तो AI से डरना नहीं है, AI यूज करके आगे बढ़ाना है. जैसे दीक्षा में मैडम ने 4 ऐसे कंपोनेंट AI में, आस्क दीक्षा में तो जितने किताबें हैं उसमें, तो रिसोर्सेस है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन पूछोगे तो वो बता देगा, लेकिन जो नहीं है उसमें बोलेगा कि ये टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है इसमें, क्योंकि हमने दिया ही नहीं उसको. तो इसीलिए हमने ऑथेंटिक वही रिसोर्स दिया जो आप पूछोगे तो आपको मिलेगा. तो आप कहोगे मुझे, मैंने ये पोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा लिया बच्चों को, मुझे असेसमेंट क्वेश्चन ऐसे देना है, मल्टीपल चॉइस देना है, थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टाइप का देना है, मुझे क्वेश्चन बना के दे दो, वो दे देगा झट से आपको कुछ सेकंड में. तो सिमिलरली ये जादुई पिटारा जो है, आपके घर पे, हमारे घर पे सबके बच्चे हैं, सोने से पहले बच्चे रोते हैं, कई बार बोलते हैं मम्मी कहानी सुना दो ना, नींद नहीं आ रही है. तो आप 365 या 3000 या 3 लाख कहानियां कहाँ से लाएंगे? तो आपकी मेमोरी में तो होगा नहीं. लेकिन हमने इजादी पिटारा जो बनाया है, तो उसमें आप करोड़ों कहानी रोज जनरेट कर सकते हो, और नई पात्र दे सकते हो, आप नए पात्र के साथ वो कहानी बना के देगा, लेकिन उसका अंत जो है सुखद हो और वैल्यूज से भरपूर हो, तो मूल्य से भरपूर हो, तो मूल्यबोध से भरपूर हो, वो ये हमने इंश्योर किया है. और पेरेंट्स घर पे बच्चों को भी बिजी रखने के लिए क्या करें वो भी बताता है, और वो भी उन्मुख और आनंद वही किताब से, और एनसीएफ एनईपी उसी से ही उठाता है, और बोलता है कि कौन सी पेज कहाँ से लिया है. आपके कक्षा में 2 ब्लाइंड बच्चे हैं, तो आपको हाउसिंग पढ़ाना है या पानी के बारे में पढ़ाना है, तो आप क्या मेथड यूज करें, क्या रिसोर्स यूज करें, वो आपको झट से बता देगा लेसन प्लानिंग करके. लेकिन ये फाउंडेशनल स्टेज तक है, कक्षा 2 तक है इस जादुई पिटारा में. दीक्षा में बाकी क्लास के लिए है. तो इसीलिए टेक्नोलॉजी यूज कैसे टीचर्स करें, कोई टेक्नोलॉजी विश्व में टीचर को नहीं रिप्लेस करने वाला है, डरिए मत. तो इसीलिए टीचर्स नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी में बी रिप्लेस्ड, बट नो टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस टीचर्स. तो इसीलिए हम लोगों को ऐसे ही रोबस्ट वे में टेक्नोलॉजी का यूज करना है. चौथा जो है, प्रोफेसर अनुपम आहूजा मैडम भी आई थी, आप लोगों से रूबरू हुई होगी. तो RPWD 2016 एक्ट के तहत 21 किस्म की दिव्यांगताएं हैं, और वो हमने अभी तक 2-3 को छोड़ के बाकी को एड्रेस नहीं किया है. फिल्में तो बहुत देखे होंगे आपने, तारे जमीन पर भी देखा होगा, इकबाल भी देखा होगा, हिचकी भी देखी होगी. तो किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा. तो हाँ, तो और लेकिन ये क्लासरूम में कब जाएगा, और तकनीकी कैसे इस्तेमाल करके हमें, आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ गया है, तो छत्तीसगढ़ वालों ने क्लास 1 से 12 तक अगर किताब बना दिया, क्लास 6 में अगर पोल्यूशन चैप्टर है, तो बोलेंगे AI को ये किताब ऑलरेडी है, इससे इस चैप्टर पे 5 मिनट का एक वीडियो बना के दे दो, तो अगले आधे घंटे में उसको 5 मिनट का वीडियो बना के भी आपको दे देगा. लेकिन वो ठीक है कि नहीं है आपको चेक करना है क्लासरूम में यूज करने से पहले. तो इसीलिए इसको कैसे यूज करके, अगर एक HI बच्चा है, VI बच्चा है, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे. इवन टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू ISL, स्पीच टू ISL भी टेक्नोलॉजी आ गया है. तो क्या हम यूज कर रहे हैं? जैसे हम लोगों ने लगभग 15,000 इंडियन साइन लैंग्वेज कंटेंट बना दिया है, तो क्या राज्य भी बना रहे हैं? तो अदरवाइज जिन बच्चों का
जन्म सिद्ध अधिकार है कि राइट है कि वो साइन लैंग्वेज में या ऑडियो बुक यूज करके ऑडियो टैक्टाइल मटेरियल यूज करके सीखें, तो आप कब सिखाएंगे? और आपने किताब एक पढ़े अनेक जो है वो देखा डेमोन्स्ट्रेशन उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर में जो स्मार्ट स्टिक पेन है, तो आप टैक्टाइल पॉइंट पे लगाओगे, टच पॉइंट है उस पे वो बोलेगा। तो similarly, actually, one resource for many learners are required because we have a heterogeneous group of learners in our classroom. तो इसको कैसे बनाना है आपको सोचना है, और आगे एनसीईआरटी ने बनाया है तो इसको आगे कैसे यूज कराना है वो भी सोचना है। रिडिस्कवर व्हील करने की जरूरत नहीं है, पहिया का आविष्कार हो चुका है, लेकिन हो चुका है तो उसको इस्तेमाल तो कोई करे। अगर 22 भाषाओं में एनसीईआरटी ने किताब ट्रांसलेट किया है तो 22 भाषाएं कन्नड़ा में जो है ये यूज तो करें। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप? सर वो आ रही है बागलकोट से। अजमेर में सर। अच्छा, you are in RI Ajmer. So then let them use Kannada book in the state and see that what is the impact. Then only it is useful. Last not least, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज करना है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करना है ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करके झट से ये जो है पढ़ाई लिखाई में ज्यादा टाइम दे दें। तो जैसे हम लोगों का आजकल ये ऑफिस आ गया है, तो मीटिंग में बैठे हैं, 10 मिनट टाइम मिला है तो ये ऑफिस में फाइल निकाल दिया, तो आपको बोलने की आने की जरूरत नहीं, डॉक्टर बेरा आपके पास 2 दिन से फाइल पड़ा है, आपने निकाला नहीं, मैं प्रोग्राम कैसे करूंगा? डॉक्टर एंजल भी आ जाती है कई बार। तो इसीलिए तो इसीलिए हम चाहे घर पे हैं, ट्रेन में हैं, तो रास्ते में जा रहे हैं तो 2-4 फाइल निकाल दिया। तो सिमिलरली आपके क्लास में अगर 2 बच्चे हैं तो या 50 बच्चे हैं, आपको अटेंडेंस लेना है और पढ़ाई शुरू करना है, तो आप बोलेंगे आपको पता है नवनीत और पूर्ण दोनों एब्सेंट है तो क्लास में, तो आप बोलोगे क्लिक करोगे नवनीत और पूर्ण, खत्म। तो बाकी 48 बच्चे हैं, बच्चों पढ़ाई शुरू करेंगे, नवनीत जी उधर बैठे हैं, पूर्ण जी इधर बैठे हैं। तो इसीलिए क्योंकि आपको पता है क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, क्या नाम है किसका, तो और पढ़ाई शुरू किया। तो जब तक हम और असेसमेंट कर रहे हैं, आजकल क्यूआर कोड स्कैनर भी आ गया, तो ऐसे OMR सीट भी आ गई, तो आजकल हाथ लिखा भी एआई टूल्स पढ़ लेता है, तो मतलब हमें मदद करने के लिए वो है। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करके जल्दी से उसको असेस करके तो बच्चों की पोर्टफोलियो बना ले, रूब्रिक्स हमने कोई दीक्षा से बनाया है तो बच्चों के साथ यूज करें, तो तब जाके जो है हमें भी ज्यादा काम में आएगा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से फ्री टाइम भी मिल जाएगी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में, पठन पाठन मूल्यांकन प्रक्रिया में समय देने के लिए। अदरवाइज अब टीचर जैसे कैटल काउंटिंग होगा टीचर करेंगे, पल्स पोलियो होगा टीचर करेंगे, वोटर लिस्ट बनाना है टीचर करेंगे, कोविड के टाइम में दारू के शॉप के सामने लोगों को क्यू बनाना है, महाराष्ट्र में टीचर बनाते थे। तो ये काम अगर ऑटोमेट हम नहीं करें तो ये इम्पॉसिबल है कि ये करने के लिए, और फ्री टीचर्स नहीं होंगे स्मार्ट वे में अगर नहीं काम करेंगे। तो आप लोगों को बेस्ट विशेस, मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया और आपके लिए उबाऊ होगा क्योंकि आपके और खाने के बीच में था मैं, तो इसीलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हम लोगों को जिम्मेवारी बहुत बड़ा है, और इंडिया छोटा नहीं है, मालदीव नहीं है जहाँ 200 स्कूल है, और ना मॉरिशस है जहाँ 400 स्कूल है, आधे बिहार वही है। तो और जो है वो नहीं है, तो इसलिए क्या करें हम ताकि इंडिया में जो हमारी सिस्टम रोबस्ट रहे। जब 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना था हमारा इंडिया में इतना बड़ा तादाद पे हम काम करते हैं, तो स्किल स्केल और स्पीड ये तीनों हम अचीव कर सकते हैं अगर तकनीकी शैक्षिक तकनीकी यूज करें, स्किल स्केल और स्पीड, ठीक है, कौशल और स्केल पैमाना और सब रफ्तार वो तीनों को गति, तो इन तीनों को हम तकनीकी यूज करके ला सकते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम, प्रोफेसर इंदु कुमार, डॉक्टर एंजल एंड ऑल resource person, technical and production team for putting their 200% effort
And I also thank all of you for going beyond your comfort level and coming here. And even sometimes some of you are sick, sometimes some of you are having some other work, but still we have a mandate, और ये mandate nation making के लिए है, तो और ह्यूमन मेकिंग के लिए है. आप एक डॉक्टर अगर होते, गलत इंजेक्शन दे दिया तो एक मरीज मार दोगे, लेकिन अगर एक टीचर है और गलत पढ़ाया हमने तो जनरेशंस विल स्पॉइल. तो टीचर का काफी बड़ा रोल है. इंजीनियर आप ही बनाते हो, डॉक्टर आप ही बनाते हो. तो इसीलिए लेट अस यूज टेक्नोलॉजी एंड बी trainer for the nation, for the globe, and train other teachers also, and spread our tribe of trainers तो across the country, और देश में visible change थोड़ा लाए हम लोग. All the best. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing about the thrust areas of NEP. And as we are closing, also we are reminded again, because हमारा पहले सेशन शुरू हो गया यही टॉपिक से, NEP का ऊपर हम लास्ट में दोबारा NEP का ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट हम NEP का थ्रस्ट एरियाज हमारा स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते. मेरा जी भी अच्छा से एक्सप्लेन किया था एक एक का थ्रस्ट एरिया का ऊपर, सो आगे हम प्लान करने के लिए भी ये यूज हो सकता है. So just keeping the time in view, अभी सर्टिफिकेट देने के लिए I'll call out the state. I request all the state resource persons from that state to come together so that we can go ahead. Okay. सब if I call out Uttarakhand, all the Uttarakhand people already are sitting in state wise only. थोड़ा जल्दी आ सकते. Uttarakhand का all the 3 people. नमस्ते, कैसे हैं? अच्छा है. उत्तराखंड आ रहे हैं हम लोग इस वीकेंड में. सुधीर साइड सर, में सभी होंगे. एक पर्सन इधर आ जाओ. बीच में एक आ जाइए. सुधीर सर, भोपाल. सुधीर सर, आप एक बंच ले रहे हैं या एक एक ले रहे हैं? सर उनका सर्टिफिकेट हाथ में देके लेंगे. अच्छा, ऑल ऑफ लाइक टाइम इज, तो किसी को एक पकड़े. ऐसा ऐसा एक एक. सर आप वो हाथ उनका पकड़. अच्छा, You want it? I have 2 certificates. Sorry, sir. छत्तीसगढ़. संगीता मैम. You can just hold, you can just take the certificate and आ जाइए, इधर आ जाइए. राजस्थान. तो आप ज़्यादा दूर है ये. You can come this side. सर का इन बिटवीन थोड़ा स्पेस दे दीजिए. इन बिटवीन सर का 5% है, तो आप कैसा भी एडजस्ट कर सकते हैं. नमस्ते, कैसे हैं? सर आप थोड़ा इधर आना. महेंद्र सर, सर आपका सर्टिफिकेट ले लीजिए. अपना अपना कोई भी ले लीजिए, अभी दिखेगा नहीं. यूपी. आप 2 पकड़ लीजिए. कौन नहीं आए? हाँ, कोई नहीं, वो दिखेगा नहीं फोटो में, चिंता मत करिए. सर ऐसा रख दीजिए. कौन और कौन नहीं है? 2 सर्टिफिकेट हैं. 5 है. 5 है. 5 ही है. एक्स्ट्रा. They can check. आ रही है. मैडम आ जाइए. हिमाचल. नेक्स्ट हिमाचल. थैंक यू. हिमाचल टीम प्लीज कम. Mr. Anil नमस्ते, आइए. Ravi Kumar. Yep, Yadavinder. और जितेंद्र. जम्मू एंड और कश्मीर. ऊपर करिए थोड़ा.
Thank you. All the best. Pushpa, Shahnawaz, Sorry. Odisha. Next you come to Rajesh, Mirza Wasim. कैसे आपके तबीयत ठीक है? कल गए थे चेकअप के लिए? गुड. थैंक यू. Odisha. Nice meeting you. Dr. Aman, Take care. Oh, sorry, sir. पुनः बोलजो. नमस्ते. Anu, Mr. Mani, Right? Jharkhand. अच्छा. Thank you. अपन go to Next, Delhi. Basant Kumar, नमस्कार. कैसे हैं? Pankaj, और Tayyab. ठीक है. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Neha, Surinder, Dr. Surinder. Okay, you have to make it into two groups. लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से. Sitanshu sir, Sanjay ji, Navneet थोड़ा sir, गैप देना. Sapna ma'am. Only four. Thank you. Sitanshu sir, Sanjay sir, नमस्ते. कहाँ से हैं? Sapna ma'am, नमस्कार. Sitanshu sir, Sanjay ma'am, Sanjay sir, सीतांशु जी और थोड़ा राइट हो जाइए. राइट राइट. Sapna ma'am. आप इधर आ जाइए. नवनीत जी को Remaining Bihar team. पहले दे दीजिए सर. पहले उनको दे लीजिए सर. दोनों को देना पड़ेगा. No, no, ग्रुप में I दे. cannot have time. No, that's it. No problem. Aarti ma'am, Manoj sir, Thank you, sir. ma'am, you can take later. We are running out of time. No? और नेक्स्ट सेशन में लंच भी करना है आप लोगों को. Next three people, please. Aarti, मनोज, मुन्ना, RI team. ठीक है. नहीं मैडम पहले जी. बस आ रही क्यों से तो बच्चा होना तो होगी. Sir, RI faculty. Ajmer and Bhubaneswar. अमन, बीच में आना चाहिए. What is your good name? Sir, I am the person I contacted you, sir. Chidana. Oh, you are based at Ajmer. Yes, sir. Oh, I am expressing my gratitude to you, sir. You actually program really went on well. very nice. Organizing team, you can Really, I come am together. very thankful to you. आप कब का सर्टिफिकेट दे जल्दी कर दो. क्विकली आ जाओ. सब अपना अपना इधर आ जाओ, पकड़ इधर आ सकते हैं. आ जाओ. इंदु मैडम का सर्टिफिकेट. Congratulations. इंदु मैडम का आरती से. अच्छा. Congratulations. You have presented. Dr. Angel slowly saying ये मेरा सर्टिफिकेट है. चार दे दो. डॉक्टर अमित को नहीं दिया है. उन्होंने सेशन नहीं लिया. सर का दिस टाइम वी कुडंट गिव सर बिकॉज़ ही वाज अ रिफ्रेशर. I take this time to say the vote of thanks
First of all, I thank our Honorable Joint Director, Professor Bairaji, for enabling us to have this particular program, always setting the vision to address the state needs and build the capacity of the state resource persons. Thank you so much, sir. And Professor Indra Kumar ji has been always full time with us. कुछ भी problem हुआ और कुछ suggestion चाहे, कुछ decision लेना है. She is the one who is at the backbone of this, all the programs, who is standing with us in all the time to enable us to do this. Thank you so much, ma'am. I also take all the faculty of DICT, Dr. Rezawal, Dr. Amit Ranjan, Dr. Rajesh, and Dr. Bhaviji for helping us for planning this program as a department's activity for SCRT and diet. Thank you so much. And also I thank every resource person who has been part of this program too. There were some internal resource person and some external resource person. All of them has helped to meet the vision of this program and also ensure the learning outcomes plan is achieved. Unka bhi, I extend my thanks, and I extend thanks to all the authorities of the states. We have participants from 10 states and 2 RIEs. I extend my thanks to all the authorities who have deputed all of you on time so that you are able to be here. And this program was fruitful because of that. Thank you so much to all the authorities, and very special thanks to each and every one of you, because until you are here to participate, there is no program. You are here, you were engaged in the classroom and you were interactive. You could really discuss with the resource person so that the sessions went on fruitfully. Also, I thank to every single resource participants here. Though we had certain restrictions, don't do this, but you never showed any ego, because there must be quite a people who are senior to me also in age or in experience, but nobody reacted in that way. Everyone thought it is a learning environment. Hum sab saath jana hai. So I extend my thanks to each and every one of you for being like collaborative with us and cooperating with us to ensure the program goes well. If you people have never come on time, then the resource person would have not spoke on time and complete on time. It is all because of your discipline and the participation. The program has been fruitful. Thank you so much. I and also extend the thanks to Media Production Division and the Engineering Division staff, who has helped us in taking session, taking us through all the studios, providing technical support. I thank everyone, to all the faculty of MPD and ED who has supported us. I also extend thanks to my own team members who have been always at the backside, without whom I cannot ensure that things are on in place. If we don't have alignment, we would have not been able to achieve our goals. So they have stood with us, understanding NCRT's goal, and they have been able to act according to that. So I thank all the project staffs who have been backing. So thank you so much once again to everyone. Though the valedictory is scrolling, we are starting our session in the afternoon also. So we'll go quickly down for a group photo so that we finish that. And since our RP will be joining us at 2 from AIMS, so we have just requested him like 10 minutes, 15 minutes we can delay, but today we'll not have solid 1 hour to take lunch. So we have to finish the group photo, quickly go for lunch, and we request everyone to be inside before 2:50. It's external resource person from AIMS Psychiatry Department head is there, will be taking. So I request everyone's presence on time. So can we quickly move down for the group photo?